Dear students, hello and welcome. I am Saurav sir and today we are going to start chapter 1, that is number system. This session will include basic introduction to the chapter. We'll also learn about rational numbers and we will also learn how to find rational numbers between two given rational numbers. This session will be both in English as well as Hindi. So let's start. In our day-to-day purpose, day-to-day life, we count a lot of things. So how do we count them? We count them by using numbers like 1, 2, 3, 4. So all these numbers which are used for counting purpose are called natural numbers. ऐसे नंबर जिनका इस्तेमाल हम काउंटिंग के लिए करते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. तो काउंटिंग नंबर्स ही नेचुरल नंबर होते हैं. सो द काउंटिंग नंबर और द नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, like 1, 2, 3 and so on. Next, what are whole numbers? So whenever 0 is included, the collection of natural numbers, then this new collection is known as whole number. मतलब कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं जैसे काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, उसमें जब हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो जो हमारे पास एक नया कलेक्शन बनता है उस कलेक्शन को हम होल नंबर्स बोलते हैं. तो होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4. So these whole numbers are denoted by the letter capital W. Next comes the term integers. So what are integers? तो हमने देखा कि होल नंबर्स क्या होता है. होल नंबर्स होता है नेचुरल नंबर प्लस 0 इंक्लूडेड. तो ये जो नया कलेक्शन था उसको हम होल नंबर्स बोलते थे. अब अगर इसी कलेक्शन में हम नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव पार्ट को ऐड कर देते हैं तब नेगेटिव पार्ट ऑफ द नेचुरल नंबर्स 0 as well as the positive part of the natural numbers. So this collection of negative, 0 as well as positive is called integers. So integers, like we can see here in this diagram, there is 0. On the right side of the 0, here are the positive integers, that is the natural number which we know, and on the on the right side there are positive numbers, that is positive integers, and on the left side there are negative integers. So this whole number line represent integers, so we call it a integer number line. Now look at the diagram here, this diagram. Now in this diagram you can see natural numbers. So natural numbers are included within whole numbers. whole number के अंदर ही natural number आता है क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन होता है. होल नंबर्स में क्या होता है, जब हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाता है. सो होल नंबर इज अ बिगर कलेक्शन देन नेचुरल नंबर बट इट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल नंबर. नेक्स्ट integers. So integers is a bigger collection than the whole numbers. It includes all the natural number including 0. So we can say that the collection of integer include all the whole numbers. Now what is a rational number? So if a number can be written in the form of p by q, fraction p by q, where both p and q are integers. We have already studied what are integers, right? All the negative, all the positive, so including 0, they are integers. So what is a natural number? A number which can be represented in the form of p by q, where both p and q are integers but q is not equal to 0, is called a rational number. एक ऐसा नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और p और q जहां पर दोनों इंटीजर्स हो, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. न्यूमिनेटर में 0 है चलेगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए. सो अगर कोई नंबर ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहते हैं दैट इज अ रैशनल नंबर. सो व्हाट आर द थ्री कंडीशंस? फर्स्ट, इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ p by q. Second, both p and q should be integers, and third, q should not be equal to 0. So a number which satisfy all these three criteria is a rational number. So rational number is a bigger collection than integer. So सबसे छोटा है नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, देन उससे बड़ा है होल नंबर्स का कलेक्शन, उससे बड़ा है इंटीजर्स का कलेक्शन, एंड फाइनली उससे भी बड़ा है रैशनल नंबर का कलेक्शन.
अब ये सारे के सारे नंबर्स जो हम पढ़ते हैं ये रियल नंबर्स के अंदर आता है, मतलब आई कैन से दैट all the numbers which we have studied till now, even till class 10th, all of them are called real numbers. जितने भी numbers हम class 10 तक पढ़ेंगे वो सारे के सारे real numbers होते हैं, ठीक है. So let's move on. Now here is a question for you. This is example number 1 from NCERT. So in these video lessons we will cover NCERT, NCERT exemplar, as well as the questions from R.D. Sharma, R.S. Agarwal and you like. So you have to practice all these questions so that your concepts become crystal clear, right? So let's see the questions. This question has been taken from NCERT. It is example number 1. The question is, first question, every whole number is a natural number. So you have to tell that whether these statements are true or false, and you have also to give reason that if it is true then why, if it is false then why. तो पहला जो है स्टेटमेंट वो है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. सो अभी हमने पढ़ रखा है नेचुरल नंबर होल नंबर दोनों, सो आई होप यू नो द आंसर्स. सो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. सो जीरो, जीरो क्या है? जीरो इज अ होल नंबर, बट इज जीरो अ नेचुरल नंबर? I ask, is 0 a natural number? What will you say? Say no, because natural number तो counting numbers होते हैं और counting numbers तो 1 से start होते हैं. 0 तो natural number है ही नहीं. So every whole number is a natural number. So this statement is a false statement. Why? Because 0 is a whole number which is not a natural number. So this statement is false. The first statement is false. So let's see the second statement. Every integer is a rational number, right? Every integer. Now अभी हमने just पढ़ा integers क्या होता है. Positive part, that is जो natural numbers होते हैं, zero as well as negative part. और rational number का हमने क्या definition पढ़ा था कि एक ऐसा नंबर जो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे. चार है तो तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे. पहला, it should be of the form p by q, p and q both should be integers and q should not be equals to 0. तो सारे इंटीजर्स. लेट अस टेक सम एग्जांपल. सो सपोज मैं एक इंटीजर लेता हूँ 0. 0 इंटीजर है? बिल्कुल है भाई. क्यों? क्योंकि 0 को मैं 0/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ. यहाँ पर p हो गया 0 और q हो गया 1. p और q दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स है. एंड q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है. तो हमारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो 0 इज अ रैशनल नंबर. सो 0 एक ऐसा इंटीजर जो रैशनल नंबर है. ओके, कोई और की हम बात करते हैं. सपोज मैं -5 लेता हूँ. तो -5 कैन बी रिटन एज -5/1. so it is p, it is q, p and q both are integers and q is not equals to 0. so -5 एक ऐसा इंटीजर है जो एक रैशनल नंबर भी है. तो हमने 0 ले लिया, हमने नेगेटिव ले लिया, कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं. 100 की बात करते हैं. सो क्या 100, हमें ये तो पता है कि 100 एक इंटीजर है. तो क्या 100 एक रैशनल नंबर भी है? तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि 100 क्या रैशनल नंबर होने के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है. तो क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया ये होता है कि कोई भी नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके. तो 100 को हम 100/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो भाई एक्सप्रेस हो गया ये. दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए. तो 100 भी इंटीजर्स है और 1 भी इंटीजर है. एंड q 0 नहीं होना चाहिए. तो q यहाँ पे 0 नहीं. तो ये तीनों हमने देखा. 0 की बात करें, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, इन सारे इंटीजर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. p एंड q यहाँ पे दोनों इंटीजर होता है एंड q 0 के इक्वल नहीं होता है. तो सारे के सारे इंटीजर्स का जो कलेक्शन होता है वो रैशनल नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. So that's why we can say that this statement is a true statement. So every integer is a rational number. It is a true statement. Now the third one, every rational number is an integer. ठीक है, तो कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं.
हाँ सब, suppose I take a rational number 4 by 5, तो is 4 by 5 a rational number? देखते हैं, rational number condition p by q के फॉर्म में है भाई, ठीक है। क्या p और q दोनों इंटीजर्स है, और क्या q 0 के इक्वल नहीं है, ये भी ठीक है। तो यस, 4 by 5 it is a rational number, but the question is कि every rational number is an integer, so whether 4 by 5 जो है क्या वो एक इंटीजर भी है? No, it is not an integer, because integers fraction या decimal में नहीं होते हैं, ठीक है। we have to remember that integer are not in fractions or decimal, so our third statement is false. Fine. So I hope these three statements are clear to you. Also the reason which I have provided here, I hope वो भी आपको समझ में आ चुके होंगे. So let's move on to some other question. So these three questions we just saw, this is the answer to these questions which we have already discussed. First one was false, second one was true, and third one was false. You can take the screenshot of this for your revision, right? But we have already discussed, हमने देख रखा है. So let's move on to the next question. So our next question is 0 a rational number? Can you write in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0? ये भी हमने अभी देख रखा है, जब हम थर्ड वाले स्टेटमेंट की बात कर रहे थे तो मैंने वहां पे 0 का भी बताया था. फिर से देख लेते हैं. तो क्वेश्चन इज 0 अ रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? तो रैशनल नंबर के लिए अगर हमें किसी भी चीज़ को रैशनल नंबर प्रूव करना है तो हमें तीन कंडीशंस की बात करनी होती है, राइट? पहला कंडीशन क्या होता है? तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि p और q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, सेकेंड कंडीशन p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 के केस में देखते हैं। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर नीचे किसी के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो वहां पर 1 लिख सकते हैं, राइट? तो 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1. तो 0/1 के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? ये एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है भाई। 1 भी क्या होता है? एक इंटीजर होता है। तो पहला कंडीशन p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा भी जा चुका है, p और q दोनों इंटीजर है, और q यहाँ पे q क्या है? 1. तो 1 तो 0 नहीं होता है, ठीक है। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो थर्ड कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। 0 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी नंबर हमारे 5 है, तो 5 कैन बी रिटन एज 5/1. एनीथिंग और एनी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, और जैसे 5 है तो 5/1 लिख सकते हैं, 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, सॉरी। तो 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1. 0 और 1 दोनों इंटीजर्स है, ये हमने इंटीजर्स के डेफिनेशन में पढ़ रखा है। और थर्ड जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर हो कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1 है, विच इज डिनोमिनेटर क्या हमारा 1 है, विच इज नॉट 0. So yes, finally we can say that 0 is a rational number. So this statement is right, 0 is a rational number. p by q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको? 0/1 and so on. तो ये चीज क्लियर हो चुका है. So next move on to another question. So next question is, next concept is to find a rational number between given two rational number. अगर दो rational numbers हमें दिए हुए हैं और उसके बीच में कहा जा रहा है कि एक रैशनल नंबर निकालो, दो निकालो, या कितने भी रैशनल नंबर्स निकालो, तुम कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास दो रैशनल नंबर्स दिए हुए होंगे और हमें उन दोनों के बीच में कोई एक, दो या उससे ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना होगा। तो सपोज जो फर्स्ट रैशनल नंबर हमें दिया हुआ है वो है ए, और जो सेकंड दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी, ठीक है। फर्स्ट रैशनल नंबर ए दिया हुआ है, सेकंड क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में अगर हमें कोई एक रैशनल नंबर निकालना होगा तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, स्क्रीन पे देख सकते हो।
फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो बीच में जो हम तीसरा रैशनल नंबर निकालने वाले हैं जो कि ए और बी के बीच में लाई करता है, लेट मी कॉल इट एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, सिंपल सा है, ठीक है। ए और बी अगर रैशनल दो रैशनल नंबर्स हैं और उनके बीच में हमें कोई तीसरा रैशनल नंबर निकालना है, से एक्स, तो तीसरे बार उसको मैं एक्स कहता हूँ, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो द फॉर्मूला इज x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू, जहाँ a और b क्या है, दो रैशनल नंबर्स है और x क्या है, उनके बीच का रैशनल नंबर है। तो अगर मैं नंबर लाइन पे देखूँ, सपोज ये नंबर लाइन जो बना रहा हूँ, तो ये होगा a, ये होगा b, और x इसके बीच में कहीं पर आ रहा होगा, तो x लाइज बिटवीन a एंड b। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो a क्या है हमारा 1 और b क्या भाई हमारा 2। See, I want you all to take your pen and notebook and pause the video and try it yourself, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताने के बाद ही मैं आके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो पहले खुद से ट्राई करो एंड देन वीडियो को प्ले करने के बाद देखो कि जो तुमने खुद से किया है और जो मैं करवा रहा हूँ दोनों सही है या नहीं है, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। सो ए क्या है 1, बी क्या है 2। सो अगर हम बोलते हैं कि इफ x इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b, देन सो इफ x is a रैशनल नंबर, मैं इसे आर एन से रैशनल नंबर को डिनोट करता हूं, बिटवीन a and b, so then I can write x is equals to a plus b upon 2, that is 1 plus 2 upon 2. So 1 plus 2 is what, 3 upon 2, which is equals to 1.5, fine। तो अगर यहाँ पे हमारा a है 1, b है 2, तो ये बीच में जो रैशनल नंबर वो क्या है 1.5, या और इसे मैं लिख सकता हूँ 3/2, ठीक है। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर दो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो उसके बीच में एक रैशनल नंबर और कैसे निकाला जा सकता है। नाउ अगर सेम क्वेश्चन में ऐसा रहे कि ए और बी के बीच में हमें मोर देन वन रैशनल नंबर निकालना है, देन हाउ वी विल डू इट। सो लेट्स सी। So this is question example number 2. It is from NCERT. The question is find 5 rational numbers between 1 and 2. अब हमें एक नहीं, हमें 5 rational numbers निकालने हैं। There is some I'm sorry, there was some technical issue, so let's continue. Question is find 5 rational numbers between 1 and 2. 5 पूछा है, एक नहीं पूछा, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसको करने के दो तरीके हैं। पहले मैं लॉन्ग मेथड बताता हूँ, फिर शॉर्ट मेथड डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ। सपोज ये एक नंबर लाइन है, स्ट्रेट नहीं बनी है वो मुझे पता है। तो ये ए और बी, ए हमारा क्या है, ए है हमारा 1 और बी इज 2। अब इसके बीच में 5 निकालना है। तो सपोज मैं बोलता हूँ पहले को x1, x1 में निकाल सकता हूँ a प्लस बी बाई 2, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 बाई 2, विच इज 3/2, फाइन। सो ये जो होगा x1 वो यहाँ पे होगा। सो x1 की वैल्यू आ चुकी बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों के बीच में, दैट इज 1 1 और 3/2 के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ। मतलब मैं 1 को अब a मानूंगा और 3/2 को मैं b एज्यूम करूंगा, ठीक है। तो उस केस में अगर मैं कैलकुलेट करूँ, सपोज इनके बीच में मैं कहता हूँ कि दे जो रैशनल नंबर है, लेट मी कॉल इट x2। तो उस केस में x2 क्या हो जाएगा, a मैंने क्या लिया 1, b क्या लिया मैंने 3/2, 1 प्लस 3/2 अपॉन 2। ऊपर में क्या है, एक नेचुरल, एक इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन है। तो एडिशन करने आई होप छोटे क्लासेस में हमने कर रखे। 2 को हम यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो गया 2 प्लस 3 अपॉन 2 और नीचे
तो इट बिकम्स 5/2 और नीचे क्या है 2, तो इसे हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन के नीचे जब एक फ्रैक्शन होता है तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन होता है वो उल्टा होके रेसिप्रोकल होके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। व्हाट आई मीन टू से इज दैट ये 5/2 में ये जो 2/1 है वो 1/2 होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 5/4। तो यहाँ पे x2 की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 5/4। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ इन दोनों के बीच में, सपोज मैं इसे x3 बोलता हूँ, x3 मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, जहां पर अब मैं a किसको ले लूंगा 3/2 को मैं a ले लूंगा और b किसको ले लूंगा 2। ठीक है, आई होप कंसेप्ट क्लियर है। दो रैशनल नंबर के बीच में तीसरा मैं निकाल सकता हूँ, वो दो मैं कोई भी एक लूंगा तो उसके बीच में एक तीसरा निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं x3 निकालता हूँ तो x3 के लिए मुझे a क्या लेना पड़ेगा, मुझे a लेना पड़ेगा 3/2 को, क्योंकि 3/2 और 2 के बीच में मैं x3 को निकाल रहा हूँ। तो ये हो गया 3/2, ये है मेरा 2, तो a प्लस b/2 का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। सो ऊपर फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो ये हो गया प्लस 4/2। ठीक है, ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 + 4/2 और नीचे है 2। तो ये कैसे करते हैं ये भी मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। ये हो गया 7/2 और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट बिकम 7/। तो ये जो x3 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू है 7/4। तो मैंने 3 निकाली, ऐसे मैं 2 और भी निकाल सकता हूँ, किसी को भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये 1 और 5/4 के बीच में निकाल सकता हूँ, 5/4 एंड 3/2 के बीच में निकाल सकता हूँ, 3/2 एंड 7/4 के बीच में निकाल सकता हूँ, या 7/4 और 2 के बीच में निकाल सकता हूँ। इट्स माई चॉइस। ठीक है, मैं कोई भी निकाल सकता हूँ, बस मुझे करना क्या है, दो रैशनल नंबर को लेना है और उसके बाद फॉर्मूला लगा देना x इज इक्वल टू a प्लस b/2, तो उन दोनों के बीच में मुझे एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके निकाल सकते हैं। तो मैंने 3 निकाल लिया, आई होप दो और जो दो बचे हुए हैं यू कैन फाइंड इट आउट बाय योरसेल्फ। तो नाउ आई विल टेल यू मेथड नंबर 2 कि दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व हो सकता है। राइट, तो मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 इज अ शॉर्ट मेथड, राइट। सो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सो क्वेश्चन में हमें कहा गया वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। तो लेट मी कॉल इट n इज इक्वल्स टू 5। जितने रैशनल नंबर्स निकालने उसको मैंने n ले लिया। अब हमें क्या करना है, a जो दिया हुआ वो क्या दिया, 1 दिया हुआ, और b क्या दिया हुआ है, मुझे 2 दिया हुआ है। a और b दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मुझे n+1 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ a एंड b बाई n+1। ठीक है, a और b दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, n+1 से। अब क्वेश्चन में a और b दोनों के डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, बट हमें पता है कि किसी भी इंटीजर का डिनोमिनेटर 1 होता है। तो a जो 1 लिखा हुआ है इसे मैं 1/1 लिख सकता हूँ और b को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो n क्या मेरे पास 5 है, तो अगर n 5 है तो n+1 क्या हो गया, 6 हो गया। तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे दोनों 6 से, ये हो गया 6/6, और इसे भी मैं क्या करूंगा 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या आ रहा है 12/6। ये बात आई समझ में। a और b दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमें n+1 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब 6/6 और 12/6 इनके बीच में हमें रैशनल नंबर चाहिए। तो यहाँ पे जो रैशनल नंबर्स होंगे दे विल बी राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन a and b are 7/6। कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर वही रखना है, बस ऊपर वाले न्यूमरेटर को एक एक करके बढ़ाते जाओ। तो 6/6 के बाद हो गया 7/6, नेक्स्ट वन इज 8/6, नेक्स्ट वन इज 9/6, नेक्स्ट वन इज 10/6 एंड नेक्स्ट वन इज 11/6। अब इनमें से जो भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं उनको कर दो।
तो 7/6 तो ठीक है, 8/6 को मैं कर सकता हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो इट कैन बी रिटन एज 4/3। 9/6 को मैं लिख सकता हूँ 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो इसे लिखा जा सकता है 3/2। 10/6 को लिखा जा सकता है 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 5/3। और 11/6 वैसे रहेगा, 7/6 वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो व्हाट आर द 5 रैशनल नंबर्स? फर्स्ट वन है 7/6, सेकेंड वन is 4/3, थर्ड वन is 3/2, फोर्थ वन is 5/3 और फिफ्थ वन क्या 11/6। आई होप ये मेथड ज़्यादा इजी लगा होगा, ये मेथड है ही इजी फर्स्ट वाले मेथड से, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया। अब आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे ना वो इस मेथड से करेंगे। फर्स्ट वाला मेथड मैंने बस कंसेप्ट के लिए बता दिया, बट यूज हम इस मेथड को करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। So next question is on your screen. Question is find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. देखो वैसे मैं क्वेश्चन करवा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता है ये क्वेश्चन टफ नहीं है। तो अगेन प्लीज ट्राई इट बाई योर सेल्फ, पॉज द वीडियो, खुद से ट्राई कर लो। मैं तो यहाँ सॉल्व करूँगा ही करूँगा, तो उसे मैच कर लेना कि तुमने सही बनाया या गलत बनाया, बट ट्राई खुद से कर लो, राइट। तो आई होप तुमने वीडियो पॉज करके ट्राई किया होगा। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और तुम देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो रैशनल नंबर्स क्या है, 4/5, 3/5 और 4/5, ठीक। और इसके बीच में कितने हमें फाइंड करने हैं? 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे n क्या है? 5। a क्या है भाई? 3/5। और b क्या है मेरा? 4/5, ठीक है। तो क्या करते हैं, a और b दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? n+1 से। तो n तो हमें पता है यहाँ पे, तो अगर n ये है तो n+1, n+1 क्या हो गया? 6 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये ऊपर हो गया 18/30, और यहाँ भी जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 24/30। अब इन दोनों के बीच में मुझे कितने 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। दोनों के बीच में अगर मैं 5 रैशनल नंबर्स निकालूंगा तो 5 रैशनल नंबर्स ए एंड बी आर 18/30, तो उसके अगले से शुरू करो। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 5 हो गया। तो इसमें से जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहे हैं उसको कर दो। तो 19/30 तो नहीं होगा, तो ये हमारा पहला है। 20/30 का 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये बचा हमारा 2/3, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3। 21/30 भी नहीं होगा, 22/30 होगा 2 से 11 टाइम्स में, 2 से 15 टाइम्स में, और 23/30 नहीं होगा। तो हमारा पहला जो था वो था ये, दूसरा रैशनल नंबर है 2/3, तीसरा है 21/30, चौथा है 11/15, और पांचवा जो है वो है 23/30, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा मेथड है। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं। So based on whatever I have taught in this video, there are certain questions for you. You have to try it by yourself, so this is your homework. First is state whether the given statement are true or false and give reason for your answers. ऐसे क्वेश्चन हमने आज का सेशन में एक देकर रखा है। 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन 3 स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और रीज़न भी देना है कि जिससे आप ट्रू लिख रहे हो या फॉल्स लिख रहे हो ऐसा क्यों है, ठीक है, एक्सप्लेन करते हुए। ये हमने एक बार एक क्वेश्चन देख रखा आज का सेशन में। दूसरा 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं, फाइंड अ रैशनल नंबर। तो
वन रैशनल नंबर निकालने का तरीका हमने देखा है। फाइंड अगेन वन रैशनल नंबर है तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला वो देख रखा है, आई होप यू रिमेंबर। फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स, थ्री रैशनल नंबर्स के लिए मैंने बता रखे हैं या तो मेथड 1 से करो लॉन्ग मेथड, या तो मेथड 2 से करो शॉर्ट मेथड, एंड देन इंसर्ट 10 रैशनल नंबर्स। So I hope all these question you will try by yourself because सारा concept तो मैंने करवा ही रखा है. So try it by yourself. This is your homework.